Hello students, so in this lecture we are going to talk about a very important chapter that is going to be heredity and evolution. Okay, so before I talk about heredity, before I talk about evolution, we need to be clear with the concepts because these are the part of genetics. So we need to be concept about the genetics. ठीक है, तो मैं पहले concept clear करूँगा, then I'll talk about the heredity and then I'll talk about the evolution. ठीक है, so now as we are aware that the body is made up of cell. जो बॉडी होती है वो सेल से बनी है, ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर 10⁻14 सेल्स. कितने हैं? 10⁻14 सेल्स. in human body, and each of these cell consist of nucleus. ठीक है, and the nucleus consists of what? आपको पता होगा, the nucleus consists of genetic material. The nucleus consists of genetic material. That means every cell in your body consists of nucleus, and the nucleus consists of what? It consists of genetic material. So the way we look, the way we talk, the way we behave, it's all because of this genetic material. ठीक है, now what is this genetic material? तो आपको पता होगा, we term it as DNA. We term it as DNA. So there are so many terms. There is a DNA, there is a gene, there is a chromosome. Okay, so let's see what is a DNA, what is a gene, and what is a chromosome. Clear hai? So every cell of us is going to have the nucleus, and the nucleus would contain the genetic material. And genetic material, I mean to say, it is a DNA, or we can term it as the chromosome, या फिर we can term it as the gene. ये जो चीज है मेरे न्यूक्लियस के अंदर, इनका काम क्या है? इट इम्पार्ट्स मी कैरेक्टर्स. ओके, दिस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? द मेन थिंग दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस proteins, and these proteins are going to be useful in the formation of various enzymes and chemicals या फिर hormones, and these enzymes, chemicals and hormones are going to impart me characters, are going to impart me what? Impart or give different characters. ठीक है, so the way I look, the way I behave, it's all because of my genetic material. ठीक है, and this is the material that is going to be passed on from your parent to you, from you to your kids, and it would keep on going. It would be passing from one generation to another, and this is known as heredity. You don't look exactly like your parents, but some of your features match with your parents because the genetic material you have received from your parent is giving you that particular character. Maybe your father has a long height, so आपके पास भी ये character है. तो कैसा आपके पास आया? So ये आया genetic material जब pass on हुआ. कैसे pass on हुआ अपन देखेंगे. ठीक है, maybe your mother's got dimples, तो डिम्पल्स वाला जेनेटिक मटेरियल आपके पास, सॉरी डिम्पल वाला कैरेक्टर आपके पास कैसे आया? बिकॉज मदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो आपके पास आया. दिस इज नोन एज हेरिडिटी. ठीक है, व्हाट यू रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, सो दिस जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू बी पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, एंड दैट इज द रीजन द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेरिडिटी. नाउ लेट्स से the DNA looks somewhat like this.
This is a DNA. This is a fiber kind of structure. मैं full form लिख देता हूँ. This is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, that is DNA. It's an acid. We contain acid as a genetic material. ठीक है? This deoxyribonucleic acid has certain segments on its surface which help in the formation of proteins. These proteins will lead to the formation of hormones and enzymes. ठीक है? Let's say this particular part of this DNA is helping in production of a protein. So this is termed as gene. क्या कहा जाता है? Gene कहा जाता है. ठीक है? So a part of a DNA which codes for protein or which helps in the formation of protein is known as a gene. तो अगर gene को define करना है तो कैसे करेंगे? So gene is defined as functional unit of DNA. Gene is defined as the functional unit of the DNA. क्योंकि DNA के ऊपर ये genes located है, काफी सारे genes located हो गए जो अलग अलग proteins बनाएंगे, अलग अलग hormones के formation में help करेंगे, अलग enzymes के formation में help करेंगे. And every one of us, if it's me, if it's you, we have different genes, and that is the reason we look different. That is the reason we look different. So we have variation among ourselves. If it's me or if it's my brother, we don't look exactly similar, ना? एक जैसा तो नहीं दिखेंगे. मैं और आपके बीच में there is no similarity. Why? Because the genes that are located on our DNA are different. If we all had the same genes, we would have been looking same. But that is not the case. Every one of us has different gene. ठीक है? So DNA consists of a gene. अब जो DNA होता है ना काफी लंबा होता है. DNA is very long. And the size of the nucleus is very very small. Nucleus तो काफी छोटा होता है. तो how do we put a long DNA segment inside the nucleus? आपके पास अगर कोई बड़ी सी रस्सी है और आप उसको अपने पॉकेट में डालना चाहते हो या एक छोटे से बॉक्स में डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप उस रस्सी को फोल्ड कर दोगे. You'll fold it up. The same way, this DNA to get inside the nucleus, the DNA to get inside the nucleus undergoes the process that is known as coiling या फिर condensation. ये DNA क्या दिखाई करेगा? Coiling करेगा या फिर condensation करेगा, so that it can get inside the nucleus. And when it undergoes the coiling or the condensation, it looks like or it gives an appearance like this. It looks like this. When this DNA undergoes coiling or condensation, it looks like this. This is what this is termed as chromosome. This is termed as chromosome. So chromosome is what? Chromosome is the coiled version or the condensation form of what? The DNA. So we should not be confused when the term DNA, gene and chromosome come. ये सब क्या है? एक ही forms है of, these are different forms of the same thing. They are all the genetic materials. मतलब if I look at the DNA, if I look at the chromosome is actually what? It's the coiled form of, yeah, it is made up of DNA itself. ये खुद DNA से बना हुआ है. ठीक है? Clear है? So we have 46 chromosomes in each cell. We have 46 chromosome in each cell. ठीक है? या फिर we can put it as 23 pairs of
chromosome. It's the same. 23 pairs मतलब कितना हो गया? 46 हो जाएगा. ठीक है? Is it clear? So DNA consists of genes, and genes are the ones which help in the formation of proteins, hormones, enzyme. The genes are the ones which give me the characters, and this DNA undergoes coiling या फिर condensation, and it forms a structure known as chromosome. ठीक है? So we have 46 chromosomes in each cell या फिर 23 pairs of the chromosome. ठीक है? Now out of this 46 chromosome, if I differentiate it, out of the 23 pairs कि मैं जो बात कर रहा हूं उसमें से जो फर्स्ट 22 पेयर्स होती है, फर्स्ट 22 पेयर, ठीक है, द फर्स्ट 22 पेयर इज टर्म्ड एज ऑटोजोम्स. क्या कहा जाता है उन्हें? ऑटोजोम्स कहा जाता है. एंड द लास्ट 23rd पेयर, the last 23rd pair is considered as allosomes. So we have 22 pairs जो है starting के, that is 44 chromosomes are termed as autosomes, while the 45th and 46th chromosomes are termed as allosomes. Why? Because this chromosome, the last pair of chromosome, decides the gender. It decides gender. That means if the last two pair of chromosome are, if it is XX, then the individual is going to be a female, and if it is XY, the individual is going to be male. Is it clear? So जो लास्ट के दो क्रोमोसोम्स होते थे, 23rd pair of chromosome is termed as the allosomes, and if it is XX, it's going to be female. If it's XY, it's going to be male. What about the rest of the 44 chromosome? So the rest of the 44 chromosome which are termed as allosomes, इनका काम क्या है? So they give, it gives general characters to human body, except the gender. General characters means the height, the skin color, the hair type, the nose shape. ठीक है, this is all going to be decided by the first 22 pairs or the autosome, and the last pair is dealing with the gender of the individual. ठीक है, so I hope this is clear. Now what is a DNA, what is a gene, what is a chromosome, आपको clear हो चुका है. So now let's start with the topic. So the name of the chapter is heredity and variation. I'm sorry, heredity and evolution. ठीक है, now if I talk about a male, this symbol indicates a male and this symbol indicates a female. ठीक है, now what happens is there are chromosomes with this male, there are chromosomes with this female. So when the gametes are formed, आपको पता है कि gamete में क्या बनेगा? This is going to form the sperm, this is going to form the egg. This is the egg is bigger than the sperm. So जो
क्रोमोसोम है या फिर जो डीएनए है, लेट्स ड्रॉ डीएनए. I'll show a different DNA here. Blue colored. Okay? Now what happens when the sperm is formed, the number of chromosomes are reduced. Okay? So यहाँ पे थे 46 क्रोमोसोम. With the male and with the female as well. There's a process known as meiosis, जिसकी वजह से the number of chromosomes are reduced. The number becomes 23. So that means I'll place half of the DNA, not the full DNA here. तो आधा DNA आएगा और यहाँ पे भी कौन सा DNA आएगा? यहाँ पे भी आधा DNA आएगा. This is the sperm. This is the egg. ठीक है, मेल एंड फीमेल. नाउ व्हाट हैपेंस इज दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है? दिस फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, अ बिगर सेल व्हिच इज नोन एज जाइगोट. तो इस जाइगोट को कौन सा डीएनए मिला? ये डीएनए मिला फादर से, ये वाला डीएनए मिला मदर से. ये दोनों डीएनए मर्ज हो जाते हैं. ये दोनों डीएनए क्या हो जाएगा? दिस बोथ द डीएनए आर गोइंग टू मर्ज. So now you can see that जो ऑफस्प्रिंग बनेगा जो बेबी बनेगा उसके पास ब्लू वाला कौन सा है? मदर डीएनए. एंड ग्रीन वाला कौन सा है? फादर डीएनए. ये दोनों डीएनए है और ये जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ बेबी. So the baby is going to receive the genetic material from the parent, from the mother as well as from the father, and this is what is known as heredity. इसे क्या कहा जाता है? This is heredity, receiving the DNA from both the parents, and that is the reason the baby would impart the characteristics of the mother as well as the father. Not only the mother, not only the father, but characteristics of both of them. ठीक है? So I hope this is clear. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है. नाउ एक और जो टर्म अपन ने यहाँ पे लिखा है, अच्छा यहाँ पे 46 से 23 हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हाफ किया. जब भी गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म एंड एग्स आर टर्म्ड एज द गैमेट. तो जब भी गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस किया जाता है और जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज मियोसिस. क्या कहा जाता है? प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि हेरिडिटी का मतलब क्या होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन. ठीक है. व्हाट इज एवोल्यूशन? सी एवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द डीएनए. डीएनए तो आपको पता चल गया, ये डीएनए है. ठीक है. तो इस पोर्शन को मैं रैप करता हूं और मैं एवोल्यूशन की बात करता हूं. Slow and gradual changes in DNA is known as evolution. ठीक है. डीएनए के अंदर क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, देयर आर सम चेंजेस टेकिंग प्लेस. So not the whole DNA is changed. For example, in my DNA, let's say, depending on my habitat, depending on my eating habits, depending on my conditions, there's 1% change. Okay, this change is going to be inherited. ये change आगे inherit होता जाएगा और आगे जब inherit हो रहा है तो जो new generation आ रही है उसमें भी थोड़ा changes आए. Let's say ये 1%, उसके अंदर भी 1% change आया तो total कितना हुआ? उसके अंदर टोटल चेंज हो गया उसके डीएनए में 2%. फिर ये भी क्या होगा? ये भी आगे इनहेरिट होगा 2% चेंज. ठीक है. और उस इंडिविजुअल में, उस ऑफस्प्रिंग में भी 1% चेंज आया
तो टोटल चेंज कितना है उसके जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में 3%। मतलब इस तरीके से होते 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 देयर इज गोइंग टू बी 100% चेंज इन डीएनए। तो अगर डीएनए 100% चेंज हो जाता है तो ये जो ऑफस्प्रिंग था और ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब दिस इज गोइंग टू टेक मेनी मेनी इयर्स। ये जो पूरा प्रोसेस है इट वुड टेक मेनी इयर्स, क्योंकि मैंने यहां पे क्या बोला, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इन द डीएनए, इट्स नॉट फास्ट। वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द मंकीज। मंकीज कहां से इवॉल्व होके आए? द मंकीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द एक्वेटिक एनिमल्स। तो आप देखो आपके डीएनए में किस तरीके से स्लो चेंज हुआ, ठीक है, एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो चेंज है 1%, फिर धीरे धीरे 2%, 3%, 4%, इसको काफी टाइम लगेगा, और ये होते होते इट इज गोइंग टू टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं कि जो लाइफ है, लाइफ का ओरिजिनेशन कहां पे हुआ था? पानी में हुआ था। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो अपने एंसेस्टर्स कौन है? अपने पूर्वज कौन है? अगर आप थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीछे जाके देखो तो वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स, द एनिमल्स व्हिच यूज्ड टू लिव इन वाटर। उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए, चेंजेस आए, चेंजेस आए, चेंजेस आए, फिर जाके क्या बना? लेट्स से दिस फॉर्मेशन ऑफ मंकीज, और फिर मंकीज के अंदर चेंज आते गए, चेंज आते गए, चेंज आते गए, और फिर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? ह्यूमंस। तो ये चीजें होने में हजारों साल लग गए, इसलिए मैंने क्या लिखा है? स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द डीएनए इज नोन एज एवोल्यूशन। अब लेट्स से एक्वेटिक एनिमल में कोई भी एनिमल जो अवेलेबल होगा उस टाइम पे वो था, और अभी तो ह्यूमंस बन गए, तो ये दोनों तो मैच नहीं करेंगे, ये दोनों भी मैच नहीं करते। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है बट वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसके साथ तो आपकी मैचिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका और आपका डीएनए तो कितना परसेंट मैच हो रहा है? ओनली लेट्स से 99% मैच, तो 1% ही मैचिंग है। इसका और आपका डीएनए में भी देयर इज अ मैचिंग, बट इसका और आपका डीएनए में मैचिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल टोटली अलग है, आपका जेनेटिक मटेरियल टोटली अलग है। मतलब यहाँ पे स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है? दो डिफरेंट स्पीसीज बने, एक तो ये पुरानी स्पीसीज और एक ये न्यू स्पीसीज। दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आप बोल सकते हो। तो आई पुट इट हियर, evolution leads to formation of new species. Evolution leads to the formation of new species. So अगर मैं बोलूं humans, us are we evolving? Because आप यहां से इवॉल्व होके यहां तक तो पहुंच गए, बट अभी आपके अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, अभी आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो रहे हैं। So the answer is yes. अपना genetic material, because the genetic material keeps on changing. It is changing. ठीक है? There is small change taking place in my DNA which is going to be carried forward. ठीक है? So according to a research ऐसा कहा जाता है, according to a research ऐसा कहा जाता है कि humans भी evolve हो रहे हैं, and it's a small, slow and gradual process, so it would take a lot of time. But जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल दिमाग पे प्रेशर काफ़ी है, यू हैव टू कम्पीट इन एग्जाम्स, आपको एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, आपको पैसा कमाना है, सो दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। तो जो ब्रेन है इसकी साइज क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आजकल अपन काफ़ी ज़्यादा मल्टीमीडिया, आप फ़ोन में लगे हुए हो, आप टीवी में लगे हुए हो, आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, तो आपके आई के ऊपर का भी प्रेशर क्या काफ़ी ज़्यादा है। सो आई की साइज भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। द रेस्ट ऑफ द बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो रेस्ट ऑफ द बॉडी को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, ओके। एज यू ग्रो अप द यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। आपके पास एक्टिवा आ जाएगा, आप एक्टिवा लेके ट्यूशन चले जाओगे, भले अभी साइकिल लेके आते हो, आप और बड़े हो जाओगे तो आपके पास कार आ जाएगी, आप कार लेके ऑफिस चले जाओगे, ठीक है। मतलब द रेस्ट ऑफ द बॉडी इतना ज़्यादा यूज में नहीं आएगी कंपेयर टू योर ब्रेन, कंपेयर टू योर आई। एंड दैट इज द रीजन, बायोलॉजी में एक रूल है, जिस चीज को आप यूज करोगे वो डेवलप होती है, जिसको यूज नहीं करोगे वो डेवलप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऋतिक रोशन की बात करो या फिर टाइगर श्रॉफ की बात करो, तो वो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी क्या हो चुकी है? ग्रो कर रही है।
इफ आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी. तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. जो चीज को यूज किया जाएगा वो डेवलप हो जाएगी, जो चीज को यूज नहीं किया जाएगा वो डेवलप नहीं होगी. सो इफ यू गो इन जिम एंड एक्सरसाइज तो आपकी भी मसल्स बनेंगे, बट इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे. ठीक है. तो उसी तरीके से जो मैंने बताया कि यार ब्रेन का साइज बड़ा हो जाएगा इन द फ्यूचर. इन द फ्यूचर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. बाकी की बॉडी की साइज कम हो जाएगी. तो जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च ये बताती है कि इन द फ्यूचर द ह्यूमंस आर गोइंग टू लुक समवॉट लाइक दिस. आपने ये चीज देख रखी है पहले. बॉडी छोटी हो जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएगी, ब्रेन बड़ा हो जाएगा. दिस इज व्हाट एलियन है ना. एलियन की अगर बात करते आपके दिमाग में ही आते क्या, ये एलियन जादू. ठीक है. तो साइंटिस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि इन द फ्यूचर द ह्यूमंस आर गोइंग टू लुक लाइक द एलियंस. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये जो एलियंस है ये ह्यूमंस ही थे जो इवॉल्व हो चुके. Aliens are the humans which have evolved. और अपन अभी evolution चल रहा है. It will take some time for us. Clear है? So I hope the term heredity is clear. The term evolution is clear as well. Done. So now I would talk about the interesting work. There was a scientist, not the scientist actually, but a priest. The name of the priest was Gregor Johann Mendel. क्या नाम था उनका? ग्रेगर जोहान मेंडल नाम था. And he was curious. आपको पता है क्यूरोसिटी की वजह से आप काफी सारी चीजें करते हो. Curiosity is the ability to question, is the ability to search for something. पर अभी के टाइम में क्या, you are quite busy. अभी के टाइम पे we cannot be curious because we have a lot of work to do. पहले के टाइम पे क्या था, लोगों के पास ज्यादा काम नहीं था तो लोग क्यूरियस होते थे तो they used to find out the answers. क्यूरियोसिटी की वजह से वो लोग आंसर्स ढूंढते थे. बट अभी के टाइम पे वो नहीं है. People cannot get time to be curious. ठीक है. बट अगर आप क्यूरियस होते हो और उस चीज का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो यू विल कम अप विद समथिंग न्यू. ठीक है. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट और अ प्रीस्ट व्हिच इज जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल. ग्रेगर जोहान मेंडल. ही वाज अ प्रीस्ट and he was a mathematician. उनको मैथ्स भी अच्छे से आता था, वो प्रीस्ट भी थे. और उसी के साथ he was curious. Okay, curious about what? So he wanted to understand what is heredity. Why does the baby of the elephant look like an elephant? Why does a puppy look like a dog? Why does a human baby resemble a human? ऐसी तो क्या चीज़ है जो कैरी फॉरवर्ड हुई है. अभी तो चलो मैंने आपको बता दी, बट अर्लियर टाइम पे पता नहीं था कि यार डीएनए आगे जा रहा है. डीएनए इज कैरीड फॉरवर्ड बाय द स्पर्म, डीएनए इज कैरीड फॉरवर्ड बाय द एग. अर्लियर टाइम्स में पता नहीं था. एंड द ग्रेगर जोहान मेंडल वांटेड टू स्टडी इट. ग्रेगर जोहान मेंडल वाज क्यूरियस अबाउट इट. ही वांटेड टू नो कि यार हाउ इज दिस थिंग हैपनिंग. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, एज ही वाज अ प्रीस्ट, उसके पास काफी सारी जगह थी चर्च के आजू बाजू. So what he did, he started his research work. So he started his research work और उनका जो रिसर्च वर्क था that was on the pea plant, मटर. मटर तो आप सबने सुना है. कौन सा प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया? पी प्लांट. टू स्टडी व्हाट? टू स्टडी द हेरिडिटी. जिसका साइंटिफिक नेम होता है मटर के प्लांट का, दैट इज पीसम सटाइवम. पीसम सटाइवम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मटर. मटर पनीर आप खाते हो ना, तो मटर पनीर में जो मटर है उसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटाइवम. और उसके ऊपर रिसर्च किसने करी थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने रिसर्च करा था. ठीक है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इनने इतना सारा इंटेंसिव रिसर्च किया था, इज ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ जेनेटिक्स. जो मैंने बताया कि जेनेटिक्स वाला जो फील्ड है, उनके जो फादर, उनको इनिशिएट करने वाले कौन थे? दैट इज ग्रेगर जोहान मेंडल.
तो उन्होंने किस चीज के ऊपर रिसर्च किया था? उन्होंने रिसर्च किया था पी प्लांट के ऊपर। सो क्वेश्चन आता है यार पी प्लांट के ऊपर ही रिसर्च क्यों किया था? तो यहां पर अपना आंसर लिखेंगे पी प्लांट कंसिस्ट ऑफ contrasting characters. Pea plant consists of contrasting characters. Contrasting characters का मतलब क्या होता है? There are some of the varieties of pea plant which are some varieties of pea plant are tall while some varieties of pea plant are short. या फिर आप बोल सकते हो dwarf. ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। यहां पे कैरेक्टर कौन सा हुआ? द कैरेक्टर इज हाइट। द कैरेक्टर इज हाइट। तो हाइट के दो कैरेक्टर्स है, हाइट के दो टाइप्स है, दैट इज नोन एज द ड्वार्फ। ठीक है, दूसरी बात एक ये थी ग्रोथ फास्टर थी, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते थे मटर के झाड़, और जब ये रिप्रोड्यूस करते थे तो हाई नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता था, ऑफस्प्रिंग्स, नए बेबी प्लांट्स बनते थे फटाफट। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, दिस आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ग्रेगर जोहान मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। एक तो उनके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैं इसके बाद मेंशन करता हूँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ग्रोथ भी फास्टर थी, और जब भी रिप्रोड्यूस करते थे मटर के प्लांट्स तो क्या करते, हाई नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते थे। सो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग कि आप फटाफट ग्रो भी कर पा रहे हो, और आपको चेंजेस, आप हेरिडिटी पढ़ना चाहते हो ना, तो हेरिडिटी किस में पढ़ पाओगे? ऑफस्प्रिंग में पढ़ पाओगे कि कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स व्हिच आर फॉर्म्ड आर इन हाई अमाउंट्स। ठीक है, तो दैट वाज द रीजन ग्रेगर जोहान मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट। नाउ मैं एक टर्म यहाँ पे मेंशन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाइट। जैसे मैंने बोला हाइट, तो हाइट इज एक्चुअली कैरेक्टर। हाइट इज एक्चुअली अ कैरेक्टर, और इस हाइट की दो वेराइटीज है। मैंने बोला टॉल एंड शॉर्ट, दैट मीन्स ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। सो ये दो चीजें जो है दिस आर टर्म्ड एज ट्रेट्स, दिस आर टर्म्ड एज ट्रेट्स। सो दिस इज अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर की जो दो टाइप्स है, कैरेक्टर इज अ हाइट, और उसकी दो टाइप्स जो है इट इज टर्म्ड एज दी ट्रेट्स। जैसे कि आप बोलोगे देयर इज अ जीन फॉर हाइट। किसका जीन है? हाइट के लिए जीन है, और इस हाइट के जीन की दो वैरायटीज है। ओके, ये जीन की दो वैरायटीज आप बोल सकते हो। दैट मीन्स वन ऑफ द जीन is going to give you tall character, another gene is going to give you dwarf character। ठीक है, तो ये जो जीन की वैरायटी है that is termed as allele, that is termed as allele। कैरेक्टर की दो वैरायटीज जो अवेलेबल होती है उसे ट्रेट्स कहा जाता है, और जीन की दो वैरायटीज जो अवेलेबल होती है उसे क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ओके, अपन आगे देखेंगे इस चीज को। इज इट क्लियर? सो मेंडल परफॉर्म्ड अ क्रॉस बिटवीन द टू पी प्लांट्स he took parents, तो उसने जो वन ऑफ द कैरेक्टर सिलेक्ट किया था, यहां पे हम डिस्कसिंग अबाउट अ कैरेक्टर हाइट। सो ही टुक अ पेरेंट व्हिच वाज टॉल एंड ही क्रॉस्ड इट विद अ अदर पेरेंट व्हिच वाज शॉर्ट। सो टॉल एंड डोफ, दिस आर द टू वेराइटीज।
जब मेंडल ने टॉल पेरेंट को क्रॉस कराया डॉफ पेरेंट के साथ, तो न्यू जनरेशन आएगी, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, न्यू प्लांट्स आएंगे. सो दोज न्यू प्लांट्स आर टर्म्ड एज F1 जनरेशन. क्या कहा जाएगा उसे? F1 जनरेशन कहा जाएगा. और इससे क्या मिलेगा? टॉल आना चाहिए, डॉफ आना चाहिए. मेंडल के सरप्राइज के हिसाब से यहां पे डॉफ नहीं आया और क्या आया? टॉल आया. सो मेंडल वाज लाइक कंफ्यूज कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों टॉल आया, क्यों डॉफ नहीं आया, क्यों इंटरमीडिएट क्यों नहीं आया, बीच का. ज्यादा टॉल भी नहीं, ज्यादा डॉफ भी नहीं, बीच का भी तो हो सकता था, बट सिर्फ टॉल ही क्यों आया? सो मेंडल वाज कंफ्यूज्ड. व्हाई इज दिस प्लांट इन द F1 जनरेशन आर ऑल टॉल? सो ही वाज कंफ्यूज्ड. ही सेड लेट्स से, चलो आगे करके देखते हैं. तो आगे क्या किया मेंडल ने? ये जो टॉल प्लांट था इसको खुद से ही सेल्फ क्रॉस कराया, खुद से ही रिप्रोड्यूस कराया. सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता होगा. अब क्या है? टॉल को क्रॉस कर रहा है सेल्फ के साथ. ठीक है, यहां पे मैं मेंशन करता हूं सेल्फ क्रॉस. कौन सा क्रॉस? सेल्फ क्रॉस. ठीक है. सो जब सेल्फ क्रॉस किया तो अब आंसर क्या आना चाहिए? अब सब टॉल आने चाहिए. But here again there was a confusion. In the F2 generation, this is the F1 generation, तो F2 generation में क्या हुआ? F2 generation में मेंडल को टॉल प्लांट्स मिले और टॉल प्लांट के साथ डॉफ प्लांट भी मिले. हाउ इज इट पॉसिबल कि यार यहाँ पे तो दोनों पेरेंट्स टॉल थे, तो F2 जनरेशन में डॉफ प्लांट कहां से आया? डॉफ प्लांट तो यहां पे अवेलेबल था पेरेंट के पास, बट यहां पे डॉफ कहां से आया? सो दिस वाज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है. सो नाउ टू अंडरस्टैंड इट कि यहां पे डॉफ कैसे आया, मतलब हेरिडिटी किस तरीके से, हाउ इज डॉफ फ्रॉम दिस. यहां पे तो दिखाई नहीं डॉफ कहीं पे, बट यहां पे डॉफ कैसे आ गया? सो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे वी नीड टू पुट डाउन द जीनोटाइप. वी हैव टू राइट डाउन द जीन्स. जैसे मैंने बताया था कि जो जीन्स होते हैं डीएनए के ऊपर लोकेटेड होते हैं और कैरेक्टर्स देने का काम करते हैं, तो ये भी कैरेक्टर्स हुए. टॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, डॉफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. सो नाउ विल यूज द जीन्स टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे जीन्स को रिप्रेजेंट करता हूं तो किस तरीके से जीन को रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो ध्यान देना. आप यहाँ पे देखो F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में कौन सा वाला कैरेक्टर पावरफुल है, कौन सा वाला कैरेक्टर का अपीयरेंस सबसे ज्यादा है? तो आप देखो तो F1 जनरेशन में भी टॉल दिख रहा था, F2 जनरेशन में भी टॉल है. ओके, डॉफ तो सिर्फ यहीं पे, F1 में तो टॉल ही था, डॉफ नहीं था. मतलब सबसे ज्यादा अकरेंस किसका है? टॉल का है. तो यहां पे आप जो जीन यूज करोगे, जीन के लिए जो अल्फाबेट यूज करोगे, दैट इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट कैरेक्टर, द पावरफुल कैरेक्टर, दैट इज कैपिटल टी. तो यहां पे मैं यूज करता हूं कैपिटल टी. और जैसे मैंने बताया था क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, तो आई कैन नॉट पुट दिस डाउन एज अ सिंगल टी, मुझे पेयर में लिखना पड़ेगा कैपिटल टी, क्योंकि मैंने क्या बोला था 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो प्लांट के पास भी क्रोमोसोम्स हो गए, पेयर में हो गए, तो इसलिए वी हैव टू पुट इट डाउन इन दी पेयर्स. डॉफ जो है, डॉफ में कौन सा अल्फाबेट लिखेगा? तो काफी लोग बोलेंगे कि सर डी लिखते हैं. डी नहीं लिखना होता है, आपको वो अल्फाबेट यूज करना होता है जो आपने डोमिनेंट के लिए यूज किया. मीन्स यू हैव टू यूज द सेम अल्फाबेट बट इन दी स्मॉल लिटिल्स. ठीक है. तो आई यूज स्मॉल टी को यूज करेंगे. ठीक है. तो अब जब गैमेट बनता है, तो मैंने बताया गैमेट के टाइम पे क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू रिड्यूस. दैट मीन्स, स्वरप करता हूं मैं. अब क्या होगा? यहां से जब गैमेट बनेगा, तो मैंने बोला 46 क्रोमोसोम थे, तो उसमें से 23 आगे जाएंगे. तो अगर 2 क्रोमोसोम है तो सिर्फ 1 क्रोमोसोम आगे जाएगा. तो यहां पे कौन आएगा? दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल टी. और यहां पे क्या आएगा? स्मॉल टी. स्मॉल टी इज फॉर व्हाट?
ड्वार्फ, कैपिटल टी इज फॉर टॉल। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब उस जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग आएंगे F1 जनरेशन में, उनके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो आप बोलोगे सर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, बट कैपिटल टी पावरफुल है। अपनी बात हुई थी कैपिटल टी इज पावरफुल। तो कैपिटल टी जहां पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर स्मॉल टी को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसको दूसरा स्मॉल टी भी चाहिए, तभी आपको ड्वार्फ कैरेक्टर मिलेगा। बट अगर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ है तो कभी भी आपको ड्वार्फ वाला कैरेक्टर या वीक कैरेक्टर नहीं मिलेगा। For the expression of a weak character, you need what? There is a requirement of what? There is a requirement of another weak character, another weak gene. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल टी तो है बट स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पावरफुल वाले कैपिटल टी के साथ है। इसीलिए F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो सब प्लांट्स क्या है, टॉल है। All the plants are tall। ठीक है, फिर F1 में अपन क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं। मतलब सेम चीज को मैं यहां पे राइट अप करूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ क्रॉस किया है यहां पे। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि ये जो प्लांट है विच इज टॉल, इसके पास कैपिटल टी वाला अलील भी है, स्मॉल टी वाला अलील भी है। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स है, यहां पे आप देखो दोनों सेम टाइप के एलील्स थे, यहां पे दोनों सेम टाइप के एलील्स थे, इसलिए गैमेट में सिर्फ मैंने कैपिटल टी दिखाया, सिर्फ मैंने स्मॉल टी दिखाया। बट यहां पे तो कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कौन से दो टाइप के? सो देयर इज सपोज टू बी कैपिटल टी एज वेल एज स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस करके देखेंगे। सो नाउ लेट्स से अभी जो जनरेशन अपन को मिलेगी, दिस इज गोइंग टू बी दी F2 जनरेशन, दिस इज गोइंग टू बी दी F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में क्या होगा, दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू क्रॉस विद दिस इंडिविजुअल। ओके, आई एम सॉरी, दिस आर द सेम प्लांट्स, तो इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। तो ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी इसके साथ जा सकता है, दिस कैपिटल टी कैन गो अलोंग विद दिस कैपिटल टी। ठीक है, दिस कैपिटल टी कैन ऑल्सो फ्यूज विद दिस कैपिटल टी। वी आर लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटीज कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका देख लिया आपने दोनों के साथ। अब इसकी बात करते हैं, this can fuse with this one, capital T small t, and this can fuse with this one as well, so this is small t small t। so आपको पता है F2 जनरेशन में डॉफ प्लांट आया था, डॉफ के लिए दोनों वीक अलील चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों वीक अलील्स आ गए, यहाँ पे दोनों वीक अलील्स आ चुके हैं। अब बाकी के तीनों को अगर आप देखते हो तो व्हाट डू यू सी, यहां पे दो कैपिटल टी है, कैपिटल टी इज रिप्रेजेंटिंग टॉल कैरेक्टर। तो ये जो प्लांट बनेगा, ये प्लांट क्या होगा, दिस प्लांट इज सपोज टू बी टॉल, दिस प्लांट इज सपोज टू बी टॉल। यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। स्मॉल टी को अगर एक्सप्रेस होना है तो उसको दूसरा स्मॉल टी चाहिए, बट यहाँ पे तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी पावरफुल है, डोमिनेंट है, वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी जो प्लांट में कैरेक्टर आएगा दैट इज टॉल। ठीक है, यहाँ पे भी टॉल, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, डॉफ। क्या आएगा, डॉफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल टी साथ में है, बोथ दी स्मॉल टी आर टुगेदर, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉफ लिखोगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। कैपिटल टी और द कैपिटल टी आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, आर द पावरफुल कैरेक्टर। तो कैपिटल टी जहां पे भी आएगा वहां पे आपको कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वहां पे टॉल कैरेक्टर देखने को मिलेगा।
ठीक है, देखो जहां पे भी कैपिटल टी था वहां पे टॉल कैरेक्टर है, बिकॉज दिस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस इज अ पावरफुल कैरेक्टर एंड दिस इज अ वीक कैरेक्टर। इसीलिए देखो स्मॉल टी था, कैपिटल टी के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, स्मॉल टी था, कैपिटल टी के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट जब स्मॉल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ है तो एक्सप्रेस हो पा रहा है, दिस इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। ठीक है, सो ये मैंने क्या लिखा है, दिस आर ऑल द जीन्स, और ये क्या चीज है, दिस आर द फिजिकल कैरेक्टर्स। यू डू नॉट ऑब्जर्व द जीन्स, आपको जीन्स नहीं, मेरे जीन्स आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, आपको मेरे फिजिकल कैरेक्टर्स दिख रहे, है ना। सो वी कैन टर्म इट एज फॉर एवरी फिजिकल कैरेक्टर देयर इज अ जीन, जैसे मैंने बताया आपको। सो अच्छा, यहां पे लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। यहां पे रेशियो जो है, रेशियो क्या है, दिस इज 1 2 3 टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। सो द रेशियो इज टॉल और ड्वार्फ का अगर रेशियो निकाले तो रेशियो इज 3:1, बिकॉज 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ, 3 इज टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसका निकाला मैंने, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, फिजिकल अपीयरेंस वाला रेशियो मैंने निकाला है। बट अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो देखूं, इफ यू टॉक अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी वाले कितने, सो कैपिटल टी वाले खाली एक ही है, यहां पे मैं लिखूंगा इट्स ओनली 1, सो इट्स 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने, 2, तो मैं लिखूंगा 1:2, एंड स्मॉल टी वाले कितने ऑफस्प्रिंग्स है, सो दैट इज 1। तो 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो है, एंड 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक इज विच इज ऑब्जर्व्ड फॉर एवरी फिजिकल कैरेक्टर। कोई भी फिजिकल कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देयर इज अ जीन रिस्पॉन्सिबल, ये बात अपन को याद रखनी है। फॉर एवरी फिजिकल कैरेक्टर देयर इज अ जीन रिस्पॉन्सिबल। तो आप ये लिख सकते हो फिजिकल कैरेक्टर के लिए आई यूज द टर्म फिनोटाइप, क्या यूज करूंगा, फिनोटाइप। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, जीनोटाइप। सो फॉर एवरी फिनोटाइप, there is a genotype. Phenotype is tall and dwarf is a physical character, और उसके पीछे के जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो आपके दो रेशियो है, वन इज द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में आप किसको देखोगे कि कितने टॉल है, तो 3 टॉल है 1 डॉफ है, तो मैंने लिखा 3:1। और अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज अ जीनोटिपिक रेशियो, तो आप क्या देखोगे, कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशंस है, तो ये सा एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन 1 है, सो दिस इज 1। ऐसे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस 2 है तो मैंने लिखा 2, और ऐसे जेनेटिक कॉम्बिनेशन 1 है तो मैंने लिखा 1। सो आप देख रहे हो जेनेटिक कॉम्बिनेशन, आई एम सॉरी, द रेशियो इज चेंजिंग। फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 while the genotypic ratio is 1:2:2:1। सिंपल एंड इजी, समझ में आया। ठीक है, सो यहां पे मैंने कितने कैरेक्टर्स की बात करी, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई हैव टॉक्ड अबाउट। सो इन दिस experiment of Mendel, I have talked about a single character, that is the height. That is the height. I am talking about the height of the pea plant in this experiment. Not me, but Mendel. So we have discussed the height of pea plant. Only the height. That means I am talking about a single character in this experiment. I'm talking about a single character. So ये जो मेंडल का वर्क था ऑन द पी प्लांट, जिसमें उन्होंने सिंगल कैरेक्टर की बात करी है, दिस इज टर्म्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है ये? This is known as monohybrid cross because we are talking about a single plant.
Okay, I'm sorry, we are talking about a single character, mono. ठीक है, दैट इज द सिंगल कैरेक्टर. बट मैंने हाइब्रिड वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पे? क्योंकि वन ऑफ द प्लांट इज टॉल एंड अनदर प्लांट इज डॉफ. वन ऑफ द प्लांट इज टॉल, अनदर प्लांट इज डॉफ. तो ये क्या हो गए? दिस आर टू डिफरेंट प्लांट्स विद टू डिफरेंट व्हाट यू कॉल ट्रेट्स. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइब्रिड वर्ड यूज किया. इज इट क्लियर? सो दिस वर्क ऑफ मेंडल इज नोन एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. एक और चीज, I'll rub this down. यहां पे आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे कि in some of the cases what you observe is both the dominant alleles are together या both the recessive alleles are together. What you observe is there are dominant alleles together as well as, जैसे यहां पे आप देख रहे हो दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों वीक है. तो डोमिनेंट के लिए जैसे पावरफुल है, तो पावरफुल के लिए अपन जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? डोमिनेंट. ठीक है, और मैंने बोला वीक है, तो वीक के लिए जो अपन वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज रेसेसिव. दैट इज रेसेसिव. तो ये क्या है? दिस आर डोमिनेंट, दिस आर रेसेसिव. अब आप देख रहे हो यानी कि इसमें कि दोनों डोमिनेंट वाले अलील साथ में है और यहाँ पे दोनों रेसेसिव वाले अलील साथ में है, मतलब बोथ द अलील्स आर ऑफ द सेम टाइप. तो ये जो कंडीशन है जहां पे अलील्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज homozygous condition. That condition is termed as homozygous. तो क्या डिफाइन करेंगे? If alleles of same type are present in individual, तो आप बोलोगे होमोजाइगस कंडीशन है. तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में कहां कहां पे होमोजाइगस कंडीशन दिख रही है? सो ये दोनों सेम है तो दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस. ये दोनों तो डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है. ये सेम है, दिस इज होमोजाइगस. ये सेम है, दिस इज होमोजाइगस. ये दोनों डिफरेंट है. तो जब अलील्स डिफरेंट होते हैं, इफ अलील्स ऑफ different type are present in individual, so that condition is termed as, क्या बोलेंगे उसको? that is going to be termed as heterozygous condition. That is going to be termed as heterozygous condition. ठीक है, so heterozygous वाले कितने हैं? This is heterozygous, this is heterozygous, this is heterozygous, this is heterozygous, because they consist of two alleles of different types. ठीक है, कैपिटल टी वाला अलील भी है, स्मॉल टी वाला अलील भी है. ठीक है, तो जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ अलील्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा था होमोजाइगस, कैपिटल टी आर होमोजाइगस, स्मॉल टी आर होमोजाइगस. अगर याली कंडीशंस प्रेजेंट है तो वी टर्म इट एज होमोजाइगस, तो बोलेंगे ही, बट उसी के साथ वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज प्योर ब्रीड. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्योर ब्रीड. सिंपल एंड इजी. तो यहां पे अपन ने कौन से कैरेक्टर की बात करी? वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं. यहां पे आपको ये सेम तरीके से क्रॉस करना है. ठीक है, आपको पता है अल्फाबेट्स कौन से यूज करने हैं. ओके, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसके अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, रिसेसिव वाले के लिए स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं. तो मैं आपको यहां पे एक कैरेक्टर देता हूं, आपको ये सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करोगे. ठीक है,
अब जो मटर के सीड्स होते हैं, उसमें इस तरीके का गोल सीड होता है या फिर इस तरीके का सीड होता है। ये जो सीड है इसे कहा जाता है राउंड, और ये जो सीड है इसे कहा जाता है रिंकड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। जैसे टॉल और ड्वार्फ था, वैसे मैं बता देता हूं राउंड। राउंड जो है ये क्या है, पावरफुल कैरेक्टर है, और ये कौन सा कैरेक्टर है, ये है रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप जब ये लेक्चर देखोगे, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो आपको पूरा प्रोसेस करना है। आप करोगे पेरेंटल क्रॉस, जो मैंने दिखाया आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो लेके, तो आप पेरेंटल क्रॉस करोगे, फिर आप क्या करोगे, F1 जनरेशन निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, F2 जनरेशन निकालोगे। ठीक है, फिर आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। कौन सा रेशियो निकालोगे आप, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये पूरा निकालोगे, और लिखने के बाद, अच्छे से बनाने के बाद, आप मुझे उसका पेज का फोटोग्राफ लेके आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर एंड दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पे मैं दो कैरेक्टर्स की बात करूंगा। ओके, in this lecture it was a single character, in the next lecture we would talk about two characters। तो उसमें भी मैं एक परफॉर्म करूंगा पूरा, और आपको दूसरा वाला खुद घर से करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे फोन करके पूछ सकते हो, सर हमको पता नहीं चला है, बट आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल नाउ। डोमिनेंट वाला कैरेक्टर मतलब जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, एंड वीक वाला कैरेक्टर मतलब जो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? Okay, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the new details regarding the chapter. Thank you so much.